Hello students, as you know that in previous video we have already solved exercise 2.2 till the question number 4. Today we solve the next 3 questions. Let we start now from question number 5. The statement of question number 5 is two numbers are in ratio 5:3. According to the question we have two numbers and their ratio is 5:3. If they differ by 18, that means they have difference 18. Find the numbers. Remember that whenever you have ratio, that means we will use the x sign from the given ratio. Means जब भी आपके पास में रेशियो है तो गिवन रेशियो के साथ में आपको x यूज करना है. इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी दैट हियर. लेट द first number is 5x. देखिए यहाँ पे रेशियो 5 था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया है 5x. रिमेंबर दैट whenever you have the ratio, that means it will be never in the right form. रेशियो जो होता है वो कभी भी राइट फॉर्म में नहीं होता. इसके लिए आपको वहाँ पे एक वेरिएबल यूज करना होगा. सो we have used here x, so the first number will be 5x and second number be 3x. okay, now according question if they differ by 18, that means उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 18 है. so according question they have difference 18. so you can see that here 5x और 3x में जो डिफरेंस होगा वो 18 का होगा. so we write here 5x minus 3x. क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा है. 5x minus 3x will be equal to the 18 because according to question difference will be 18 here. now you can see 5x minus 3x will be 2x equals to 18. यहाँ से आप देख सकते हैं x की पावर 1 है और वेरिएबल नंबर भी 1 ही है. तो ये जो है वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. इसके सॉल्यूशन के लिए हमें x को अकेला करना होगा. सो यहाँ से 2 जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो वी गॉट हियर x equals to 18 upon 2. when we cut it, so we got here 9. so first number will be you can see that here 5x. so we write here 5 into value of x here 9. so it will be 45. is that clear? and second number you got here 3x. 3 into x value here 9. so it will be 27. is that clear? remember that whenever you solve the word problem of the linear equation, just follow the statement of the given question. सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसको रीड करना है और उसी को फॉलो करते जाना है. नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. you can see that statement of the question 3 consecutive integers add up to 51. what are these integers? you can see that here there are 3 consecutive integers. that means कंजुगेटिव का मतलब होता है जो कंटिन्यू इंटीजर्स आते हैं. जैसे 1 है, 1 के बाद में 2 3, तो जितने भी इंटीजर्स हैं अगर आप देखें तो उन सब में 1 का गैप होता है. जैसे कि 1 के बाद में 2 आया, 3 आया, 4 आया, इन सब में 1 का ही गैप होता है. सो हम यहाँ पे 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स एज्यूम करेंगे. पहला इंटीजर हम x ले लेंगे, दूसरा इंटीजर जो लेंगे उससे एक ज़्यादा होगा, मतलब वो हो जाएगा x+1, और उससे जो अगला होगा उसमें हम +1 कर देंगे. तो इस तरीके से हमारे पास में 3
कंजुगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे. सो लेट वी हैव, लेट द फर्स्ट integer is x. अगर पहला इंटीजर x है, सो सेकेंड इंटीजर b x प्लस वन, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनमें सब में 1 का गैप होता है. तो पहला इंटीजर अगर x है तो उससे अगला इंटीजर होगा x प्लस वन. एंड थर्ड इंटीजर विल बी, अब थर्ड इंटीजर जो होगा उसमें प्लस वन यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस टू. ओके, तो हमारे पास में कंटिन्यू जो इंटीजर्स हैं वो हैं x, x प्लस वन एंड x प्लस टू. नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, द सम ऑफ द थ्री इंटीजर्स इज 51. यहाँ लिखा है ऐड अप टू 51. जब इनको ऐड किया जाएगा तो इनका जो सम आएगा वो 51 आएगा. सो वी विल ऐड देम, x प्लस वन प्लस x प्लस टू equals to 51. Now we will add them here. x plus 1 x plus 2 equals to 51. You can see that here x will be 3x and 2 plus 1 will be plus 3 equals to 51. You can see that here power of variable is 1 here and number of variable is 1. So it will be a linear equation in one variable. और जब भी आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ से हम सभी नंबर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, केवल x यहाँ पे रहेगा. सो फर्स्ट वी ट्रांसफर द 3 हियर, 3x equals to, when we transfer plus 3 then we got here 51 minus 3. Is that clear? Now you can see that we got 3x equals to 51 minus 3 will be 48. Is that clear? Now when we transfer the 3 here, तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 और x के बीच में इंटू का साइन है. तो जब नंबर ट्रांसफर होगा सो इट विल बी डिवाइड हियर. x equals to 48 divided by 3. When we cut it then we got here 16. Okay, so we got here x value and x क्या था, x जो है वो फर्स्ट इंटीजर था. सो फर्स्ट इंटीजर बी 16. आपका जो पहला इंटीजर होगा वो कितना होगा, 16 होगा. सेकेंड इंटीजर बी, अब सेकेंड जो है वो x प्लस वन है, मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 16. सो वी राइट हियर 16 प्लस वन, दैट मीन्स इट विल बी 17. 16 plus 1, that means it will be 17. And the third integer b, you can see third integer is x plus 2 and the value of x is 16. So we write here 16 plus 2, 16 plus 2, then we got here 18. So the conjugative integers are 16, 17 and 18. आप देख सकते हैं 16, 17, 18 कंटिन्यू है. So that will be answer. Now we solve the question number 7. The statement of 7 is the sum of 3 consecutive multiplies of 8. You can see that here
कंजुगेटिव का मीन्स मैंने आपको पहले बता दिया था, जो कंटिन्यू आते हैं, एंड मल्टीप्लाइज ऑफ 8 दैट मीन्स उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 8 का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पहला कंजुगेटिव x लेते हैं तो उससे अगला जो कंजुगेटिव होगा वो होगा x प्लस 8। ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट मीन्स उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का होता। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑफ 8, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 8 का होगा। सो फर्स्ट अगर आप x लेते हैं तो सेकंड जो होगा वो x प्लस 8 होगा, और जो थर्ड है उसमें भी आपको प्लस 8 करना पड़ेगा। सो लेट द फर्स्ट multiplies of 8 be x। पहला मल्टीप्लाई जो है अगर x है, देन सेकेंड multiplies of 8 be x plus 8, because as you know that according question conjugative multiplies of 8 we are finding here, so we have the difference of 8 here. Okay, so the third multiplies of 8 be x plus 16, बिकॉज फर्स्ट अगर x है तो उससे अगले नंबर में हमने x में 8 ऐड कर दिया तो सेकंड हो गया, और थर्ड कंजुगेटिव मल्टीपल के लिए हमें उसमें ऐड करना होगा 8 को, तो यहाँ पे जब आप 8 को ऐड करेंगे तो यू गॉट हियर 16। ओके, नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन सम ऑफ देम, उनका जो सम है is 888। According question you can read here, the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। जो 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स आपने लिए हैं उनका जो सम है वो 888 है। तो आइए हम उनका सम कर लेते हैं। x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 equals to 888। You can see plus x plus x plus x will be 3x, and the sum of 16 and 8 will be plus 24 equals to 888। You can see यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1 ही है, तो यहाँ पे ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और इसके सॉल्यूशन के लिए हमें जो नंबर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना होगा, बिकॉज वी वांट दैट वेरिएबल शुड बी अलोन हेयर। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अकेला होना चाहिए, बाकी सभी को हमें ट्रांसफ़र करना होगा। सो फर्स्ट वी ट्रांसफर 24 हियर, देन वी गेट 3x इक्वल्स टू 888 माइनस 24। सो वी गॉट 3x इक्वल्स टू 864। आफ्टर देन 3 विल बी ट्रांसफर, then we got x equals to 864 upon 3 when we cut it, so we got here 288। okay, so x का जो वैल्यू है वो है 288 और x जो है वो कौन है, वो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 है। तो यहाँ पे जो पहला आंसर होगा वो 288 होगा। सेकंड मल्टीपल के लिए हमें x में क्या ऐड करना होगा, 8 ऐड करना होगा, और x क्या है 288 है, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास में सेकंड मल्टीपल आ जाएगा। और थर्ड मल्टीपल के लिए हमें 16 ऐड करना होगा। सो फर्स्ट multiplies of 8 is 288।
and second multiplies of 8 be 288 प्लस 8, बिकॉज सेकेंड जो है वो x प्लस 8 है, x की वैल्यू 288 है, उसमें हमें प्लस 8 करना पड़ेगा. सो वी गॉट हियर 296. थर्ड multiplies of 8 be 288 plus 16, because the third multiple of 8 is x plus 16 और x जो है वो 288 है. when we add them then we got here 304. so you can see that here the first multiple of 8 is 288 and second is 296 and the last is 304. remember that कंजुगेटिव का मीन्स होता है जो कंटिन्यू नंबर्स आते हैं, और अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो यहाँ पे 1 का गैप होता, क्योंकि इंटीजर्स में 1 का ही गैप होता है. और मल्टीपल्स अगर कह रहा है तो जितने का वो मल्टीपल है उतने का गैप होता है. जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑफ 8, तो यहाँ पे जो गैप होगा वो 8 का गैप होगा. और अगर यहाँ पे होता मल्टीपल ऑफ 5 तो गैप होता 5 का. जैसे कि अगर क्वेश्चन ये होता द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो हमारा फर्स्ट जो होता वो x होता, सेकंड जो होता x प्लस 5 होता, और जो थर्ड होता वो x प्लस 10 हो जाता. आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. आज के लिए इतना ही.